हेलो स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स क्लास 12th आज हम लोग देखेंगे वीडियो में। फिजिक्स क्लास 12th में हम लोग पढ़ रहे थे जो लेक्चर, वो हम लोग इसके पहले जो भी पढ़े हैं पोटेंशियल के बारे में जाने हैं, और इसके पिछले वीडियोज में हम लोग कंडक्टर के बारे में भी जाने हैं। और कंडक्टर के केस में हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर भी पढ़े थे। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर में हम लोगों ने ये देखा था C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है। लेकिन आज दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं, इसके पहले हम लोग इस कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर भी हम लोग देखे थे, और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर या स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन अ कंडक्टर। तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। देखो आप दोस्तों ये समझो कि अगर कोई कंडक्टर हमारे पास है, ये कंडक्टिंग बॉडी है, और इसको हम लोग क्यू चार्ज दे रहे हैं, इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा है। अगर चार्ज क्यू देने पर इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हुआ है, then the capacitance of that conductor is given by C is equal to Q by V. This is considered as equation 1. Okay. This topic you have already read that if you give some charge Q to a conductor, then the potential increases in the ratio of the given charge such that Q proportional to V. Then the capacitance of this conductor is given by C is equal to Q by V. Okay. So let's come on the topic here that consider if you give some small charge to this conductor. Small charge, it means just like infinitely small charge given dq to this conductor. Infinitely small charge given to this conductor. So in this case, the work done in this section is given by dw is equal to v dq. Let's consider here that you know already that v is equal to w by q. If we have to given the charge q to any conductor, then in this section, if the total work done w, then the potential is defined by the ratio of work done with respect to the given charge. V is equal to w by q. You know already. Okay. So dw is given by v dq, but equation 1 gives v is equal to q by c. V is equal to q by c. Okay. So in the action of given a infinitely small charge dq to the conductor, then the work done is given by dw. Okay. But in case if you give the charge from 0 to q, if charge given from q is equal to 0 to q is equal to q, matlab because this charge is not given directly to the conductor, but the charge given to this conductor gradually, ये धीरे धीरे आप इसको चार्ज देते हो, तो उसी रेशियो में इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है. सो इन द केस
if we given the charge Q is equal to 0 to Q is equal to Q, then the total work done is given by W is equal to this part is integrating from Q is equal to 0 to Q is equal to Q and Q by C dQ. So students, this is the integral part, and in integral part you know that we have to find the total value of work done in the case when we give the charge from 0 to Q. 0 to Q, in the case of 0 to Q charging, then the total work done is given by the integration of this portion. This is called the definite integral. This is called definite integral, but I know still now you have not read the definite integral, but I think you understand this clearly, this topic clearly, because if you come in the next line, here C is a constant, then leave out from the integral section, and again Q is equal to 0 to Q is equal to Q and Q dQ. Okay. Now this integral section is given by one by C, and this integral section given as Q square by 2, and this is the definite integral Q is equal to 0 to Q is equal to Q. Here listen, Q square by 2, it means because the integration of Q is given by Q square by 2, then it's clearly that the differentiation of Q square by 2 is given by Q, because come here, Q square by 2, if you dQ differentiation, so differentiation, so Q square, the differentiation of Q square is given by 2Q by 2, then 2 is cancelled. It's clear. So differentiation of Q square by 2 is equal to Q, then the integration of Q is given by Q square by 2. But this is the definite integral, so in this case, half, here 2 is taken out of the bracket, then again if you expand this section, then at first you put here upper limit. This is called upper limit and this is called lower limit. So at first replace this Q by this Q, it means upper limit, and again lower limit. This is the total expansion, because this is called definite integral from 0 to Q, and finally you have answer half Q square by C. This is the total work done in this case. But you know that the total work done in this section is called the potential energy of this conductor, denoted by U, and hence the potential energy U is equal to half Q square by C. This is the final formula for potential energy, but you have some change in this formula because you know that U is equal to half Q is equal to CV, so CV square C यहाँ लिखेंगे, since Q is equal to CV. Since Q is equal to CV, then if you substitute Q is equal to CV, then C square CC cancelled, then you have another formula half CV square. So U is equal to another formula half CV square. Here also a formula U is equal to half
CV square. This is the potential energy of a conductor. So potential energy only depend on the capacitance of that conductor and potential increases in the given charge. But the potential energy not depend on the charge. Here potential energy is directly proportional to the given charge, but capacitance is, if capacitance is constant. When capacitance is constant, then potential energy is directly proportional to the square of given charge. Okay, but in this case, when the charge is constant, then the potential energy is directly proportional to the capacitance and the square of the potential. Okay, so this topic explain the stored potential energy on a conductor. Okay, so let's come next topic. Next topic is capacitors. So student, this topic is a very important. Capacitors. At first, you understand the concept of capacitors. What is the concept of capacitors? So students, capacitors means capacitors is the combination. Capacitors is the combination of a system in which we have to increase the potential. We have to increase the potential of the conductor by small changes of charge. Okay, it means आप ऐसे समझो जैसे what is mean by capacitors. So capacitors is a system in which we store the sufficient energy, to store the sufficient energy by some changes, by a small changes. It means कि उसको जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम एनर्जी कैसे इंक्रीज कर सके, उसको जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको एनर्जी सफिशिएंट दिया जा सकता है सम स्मॉल चेंजेस के द्वारा. ऐसा एक समायोजन है, एक प्रकार से कह लीजिए, कॉम्बिनेशन है. ठीक है, हम उसी को जानेंगे. यानी कि इसमें यह बताया गया कि कैपेसिटर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स in which we have stored the sufficient energy by sufficient energy without changing the shape and size of that conductor. यानी कि उस कंडक्टर के शेप और साइज में बिना कुछ चेंज किए हम उसमें स्टोर्ड एनर्जी को कैसे एनफ स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको चलिए समझते हैं. एट फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ प्लेट लाइक दिस एंड दिस इज स्टैंड on the, this is insulating stand. Okay, and if let us consider you have a plate just like metallic plate called conductor. Okay, and when you give some charge to this plate by an electric machine, then
let us consider this plate A. Then if you given the charge of Q to this conductor, then the positive charge here is a positive charge is stored in the surface of this plate, and in this case, because you have to given the charge Q to this plate, and suppose that the increasing potential of this plate is V, okay, then the capacitance of this plate is given by C is equal to Q by V. Okay, listen again. When you give some charge Q to this plate, then the upper surface of this plate charged by the plus Q coulomb. Okay. But in this case, the increasing potential of this plate is given by C is equal to Q by V. This is the capacitance of this plate. But we have already discussed about it that the capacitor is a system in which we store the required energy, or sufficient energy, without changing the shape and size of it. So how we can do this? कैसे कर सकते हैं? So listen, students. If we have decreased the potential, somehow, then if the potential is decreases, then the capacitance increases, but in this case Q is constant. अगर ऐसा है कि V को आप चेंज करेंगे तो C चेंज होगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस समय, C इज इक्वल टू Q बाई V. लेकिन हम कुछ ऐसा करते हैं कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज करता है या पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो उस रेशियो में इसको हम देखेंगे कि जो कैपेसिटेंस इसका है वो भी इफेक्टिव होगा इसका. ऐसा करने के लिए बस हमारे पास एक सिस्टम ऐसा होता है कि इफ वी टेक अनदर कंडक्टर एंड प्लेसिंग नियर टू दिस, and this is also stand on insulating system, insulating stand है ये. So when you place another plate near to this, then here arises the effect of induction. It means induced चार्ज इस पे क्रिएट होता है, और इस पे जो इंड्यूस्ड चार्ज क्रिएट होगा इसके फ्रंट सरफेस पे अपोजिट चार्ज, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, एंड सेम अदर सरफेस पे इतने का ही इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है. लिसन केयरफुली. हियर इफ यू गिवन द चार्ज Q plus Q, then the upper surface charged by plus Q, positive Q. But when you placing another plate near to it, then by the case of induction, the front surface charged by same charge as negative, but the upper either surface is charged by positive charge. Okay. So, but in this case, when you place this plate, just at that time,
this golden leaf, this is called golden leaf. गोल्डन लीफ, दिस इज कॉल्ड गोल्डन लीफ। ये सोने की पत्ती होती है। आप जैसे ही इसको चार्ज देते हो तो इसका ये सरफेस पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका पोटेंशियल भी है, चार्ज आपने क्यू दिया तो इसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई वी हो गया। लेकिन इस समय जैसे ही कोई नया दूसरा प्लेट इसके पास आप ला के रखते हो, कोई भी कंडक्टर आप आइदर कंडक्टर आप ला के रखते हो, तो इसमें इंडक्शन होता है और ये इस चार्ज को हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। और ये इंड्यूस्ड चार्ज कुछ इस तरह से होता है कि इस पर ये जितना नेगेटिव होगा ठीक उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। लेकिन इस सेक्शन में देखा गया ये जो गोल्डन लीफ है इस समय ये डाइवर्ज हो जाता है। दिस गोल्डन लीफ इज डाइवर्ज। डाइवर्ज मीन्स ये सिकुड़ जाती है, गोल्डन लीफ सिकुड़ जाती है। और सिकुड़ने का मतलब ये हुआ कि इस समय इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। जैसे ही आपने रखा पोटेंशियल इसका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका कैपेसिटेंस जो है ऑलरेडी इंक्रीज कर गया। दोस्तों, कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का मतलब यह होता है कि अब हम उसे और चार्ज दे सकते हैं। अब हम अगर चाहें तो उसे और चार्ज दे सकते हैं। पहले जितना, जैसे कि हमने चार्ज क्यों दिया, पोटेंशियल भी क्रिएट हो चुका है तो कैपेसिटेंस ही हमने डिफाइन कर लिया। लेकिन जैसे ही आप कोई अदर प्लेट्स ला के रखते हो इसके पास, तो इंडक्शन के थ्रू तुरंत ये गोल्डन लीफ जो सोने की पत्ती, स्वर्ण पत्ती सिकुड़ जाती है, ये डाइवर्ज हो जाती है। और डाइवर्जन होने का मतलब ये इंडिकेट करता है कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। So you know that if V decreases, then capacitance of this system is increases. So if the capacitance increases of this plate, then it is the symbol that we have to give more charges to this conductor by the balancing of this capacitance. So in other case, if C is equal to Q by V, तो जैसे ये गोल्डन लीफ डाइवर्ज करेगी तो ये इंक्रीज करके कैपेसिटेंस, तो हम इसका मतलब कि कुछ और चार्ज इसको दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि हमने इसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके कैपेसिटेंस को हमने इंक्रीज कर लिया। और कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का मतलब ही है दोस्तों कि उसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं V या Q यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, अभी अभी हमने बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी U होता है वो हाफ CV स्क्वायर होता है, Q स्क्वायर बाई C था ना, हाफ Q स्क्वायर बाई C या हाफ CV स्क्वायर था। ठीक है, सो इफ C इज इंक्रीजेज देन पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज। तो यही मैंने पहले लाइन में बोला था कि जो कैपेसिटर्स है ये एक ऐसा सिस्टम, ऐसी युक्ति है जिसके शेप और साइज में बिना कोई चेंज किए हम इसमें स्टोर्ड एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर्स, तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अभी। लेकिन ये फिनिश नहीं हुआ, जरा देखते रहिएगा ध्यान से इसके पॉइंट को। तो इस समय तो हमने बता दिया C इज इक्वल टू Q बाई V। लेकिन दोस्तों अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब अगले ही सिस्टम में एक काम हम लोग और करते हैं कि अगर अभी तो मैंने केवल ये प्लेट रखा तो इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया तो C इंक्रीज कर गया, हमने कुछ और हम और चार्ज दे सकते हैं, फिर से कुछ चार्ज दिया जा सकता है। इसका मतलब इसका कैपेसिटी हमने बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस बढ़ा दिया तो इसका मतलब कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ तो एनर्जी इसकी हमने बढ़ा दिया और एनर्जी स्टोर किया जा सकता है। लेकिन अभी एक केस और है। अब एक नया केस, इसमें टोटल हम लोग सेम फिगर लेते हैं ऐसे ही, बस इसमें फर्क ये है कि
ये जो वायर है गोल्डन लीफ का, इसको भी हम यहाँ पे अर्थ कर देते हैं। मतलब जो सेकेंड प्लेट ए है ये बी है, अभी इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था, ये नेगेटिव चार्ज इस पर आया था, इतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन देखो अब इस फिगर में क्या होगा कि जैसे ही इसके सेकेंड प्लेट को आप अर्थ कर दोगे, अगर इन केस अगर आप इसकी इस सरफेस को अर्थ करते हो जैसे ही, तो उस केस में अब क्या हुआ, देखा गया कि ये गोल्डन लीफ पहले की तुलना में थोड़ी फिर सिकुड़ गई, फिर से ये डाइवर्ज हो गई। पहले फिर से सुन लो मेरी बात कि हमने यहाँ पे जब ये पहले प्लेट सामने ला के रखे हैं तो भी डिक्रीज कर गया, भी डिक्रीज करेगा तो सी इंक्रीज कर गया, सी इंक्रीज करेगा तो ये गोल्डन लीफ डाइवर्ज हो गई। तो लेकिन फिर से हमने कुछ और चार्ज इसको दे दिया तो फिर से ये फैल गया, एनलार्ज हो गई है, फिर से ये मतलब कि एक्सटेंड कर गई। तो उस केस में इसका कैपेसिटेंस फिर इंक्रीज कर गया। लेकिन अनदर केस में जब अगर आप इसको किसी का कंडक्टिंग वायर से अर्थ जोड़ देते हो, सेकेंड प्लेट को अगर अर्थ कर दिए, तो अब इसका फायदा ये देखा गया कि ये जितने अपर साइड में आधा साइड में ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अर्थ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ये सारे चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं, यानी कि अब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, और अगर कोई भी चार्ज नहीं होता इस केस में फिर ये देखा गया कि डाइवर्ज होने का मतलब फिर क्या हुआ, फिर से एक नया केस अराइज हो गया, यानी कि फिर से हमने V को डिक्रीज कर दिया, फिर से अगर V डिक्रीज हुआ तो C फिर से इंक्रीज होगा, और C इंक्रीज होगा तो हम कुछ फिर से चार्ज दे सकते हैं। यानी कि अभी दो तरीका, पहले केवल प्लेट लाया गया तब हमने चार्ज इंक्रीज फिर से दिया, लेकिन फिर अगर आप अर्थ कर देते हो तो फिर से इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हम इस कैपेसिटेंस को दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, और अब इस पे और सफिशिएंट चार्ज हम दे सकते हैं। और चार्ज देने का मतलब ही दोस्तों होता है कि उसके एनर्जी को, जो स्टोरिंग एनर्जी है, उसके कैपेसिटेंस को मैं बढ़ा दिया, हमने बढ़ा दिया उसको। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिस्टम एक कैपेसिटेंस के नाम से जाना जाता है। और ये कैपेसिटेंस का सिंबल जो फिगर में मिलेगा दोस्तों, ये कुछ इस तरह से इसका फिगर होगा। पैरेलली इसको देखेंगे हम, इसको पैरेलल प्लेट बोलते हैं। कहीं कहीं इसको ऐसे भी दिखा दिया जाता है, ये इसके सिंबल्स हैं। एक सिंबल इसका और है जिसको ऐसे करने के बाद ऐसे अगर इसमें कट करोगे तो ये तो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ये सिंबल है चाहे ये सिंबल है, लेकिन इस सिंबल को वेरिएबल कैपेसिटेंस मानते हैं, वेरिएबल कैपेसिटेंस या वेरिएबल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, यानी कि ये ऐसा कैपेसिटर होता है जिसकी कैपेसिटी को वेरिएट किया जा सकता है, कम अधिक किया, वेरिएबल माना जाता है, तो इसको ऐसे सिंबलाइज किया जाता है। अब बाकी अगर कांस्टेंट का केस में है तब ये चाहे ऐसे दिखाया जाता है। दोनों इसके सिंबल है, लेकिन ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टॉपिक अभी हमने कैपेसिटर्स के बारे में देखा था, इसे आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये तो कैपेसिटर्स की थ्योरी हमने आपको पूरी समझाई अच्छे से कि कैपेसिटर्स कैसे वर्क करता है और कैपेसिटर्स कहते किसको है, वो आप देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना कवर कर लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के साथ, और वही कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो है एग्जाम में बहुत पूछा गया दोस्तों। तो वो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू।